بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسٹس مظہر علی نقوی کو ایک شوکاز نوٹس جاری ہو گیا ہے جس میں ان کی جائیدادوں کا خصوصاً گرجا گھر لاہور والی چار کنال کے گھر کا پوچھا گیا ہے۔ چار کے کنال کا وہ بنگلہ جو اربوں کا ہے وہ 4 کروڑ میں کیسے لیا گیا؟ ان پر بڑے سنگین الزامات ہیں کہ کروڑوں کے پلاٹ 5-10 لاکھ میں لے لیے، کروڑوں کا بنگلہ 8 لاکھ میں لیا، وغیرہ وغیرہ۔ نقوی صاحب نے 3 مہنگے وکیل کیے، مخدوم علی خان صاحب، علی ظفر صاحب اور خواجہ خالد صاحب۔ لاکھوں میں یہ لیتے ہیں، لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں یہ فیس لیتے ہیں۔ اور اب فیصلہ کیا آئے گا وہ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کل یا آج ہی کسی ٹائم یا کل آپ کو یہ محترم جناب جسٹس مظہر علی نقوی صاحب ریٹائر ہو جائیں گے۔ لالچی آدمی ہیں، اپنی پینشن بچانے کے لیے، اپنے تمام مراد بچانے کے لیے فوراً استعفیٰ دیں گے۔ انہیں پتہ ہے کہ میں نے کیا 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 ہے اور کہاں کہاں سے فیس پکڑی ہے۔ رزلٹ ہزاروں وکلاء والا ہی رزلٹ وہی نکلے گا جو 30,000 والا ہے۔ 20-30 ہزار والے وکیل جو لیتے ہیں وہی یہ کروڑوں روپے والے وکیل بھی وہی کام کریں گے، یہ بھی کوئی خاص دلائل نہیں دے سکیں گے۔ اور دعویٰ سے پہلے، بحث سے پہلے نقوی صاحب کا استعفیٰ آ جائے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں مسعود انور، اپنے پروگرام داستان سرائے سے آپ کو سلام کہتا ہوں۔ آج ہم آپ پر بڑی تہلکہ خیز خبر دینے جا رہے ہیں کہ محترم مظہر علی نقوی صاحب نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ، یہ ہم آپ کو اندر کی خبر دے رہے ہیں، سپریم کورٹ کے اندر کی خبر کہ محترم مظہر علی نقوی صاحب نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ محترم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک حکم دیا ہے کہ سپریم کورٹ کو اعلیٰ عدلیہ نہ لکھا جائے، اور اس سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ صاحب بھی نہ لکھا جایا کرے، صاحب لکھنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ محترم قاضی صاحب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ذرا محتاط ہو گئے ہیں اور انہوں نے ایک ڈرا لائن کھینچ لی ہے کہ اس سے آگے اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہیں جانا۔ اور سب سے بڑی اور سب سے اہم خبر کہ خواتین کی لڑائی کا تو سبھی کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی میں خواتین اب کیسے لڑ رہی ہیں کہ کون بنے گا کروڑ پتی۔ بشرا بی بی کہتی ہیں میں بنوں گی کروڑ پتی، اور عمران خان کی بہنیں کہتی ہیں، وہ شروع سے کہتی ہیں کہ ہم ہیں کروڑ پتی۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ بشرا بی بی واپس نانی بن کے، جیسے کہتے ہیں نا ماموں بن کے، ویسے نانی بن کے واپس وہ اکاڑا جاتی ہیں، پاک پتن جاتی ہیں، یا وہ بنی گالا کا گھر یا پھر سمان پارک کا تو انہوں نے اپنے نام پہ وہ حق محرم جو ہوتا ہے اس میں لکھایا، محرم تو نہیں، حق کچھ ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے اس میں لکھا لیا تھا۔ تو
लेकिन मिलेगा नहीं, एक धेला नहीं मिलेगा इन लोगों से। कभी ज़कात खोरों से भी कुछ मिला? ज़कात खोर तो खुद देते हैं, वो तो खुद कुछ कोल आगे देते हैं कि हमें कुछ दिया जाए, तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। इनको मिलेगा बटंटू, इनको मिलेगा वही। मानेका साहब सही कहते थे कि इसको घर नहीं आना चाहिए। अब मानेका साहब की बीवी दोबारा घर जाएगी और फिर वही बच्चों में रहेगी, फिर वही सब कुछ होगा। एक पराए नाम सा निकाहनामा और शादी और दैट्स इट। सबसे अहम खबर तो रह गई, तो यारों सबसे अहम खबर रह गई कि चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वो सदर बनना नहीं चाहते, वो इंट्रा पार्टी में हिस्सा ही नहीं लेना चाहते। जब इंट्रा पार्टी में हिस्सा नहीं लेंगे तो आम पार्टी में वो कैसे हिस्सा ले सकते हैं? आम पार्टी में भी हिस्सा नहीं लेंगे तो वो रहेंगे। उनको वैसे भी जेल पसंद आ गई है, साइकिल मंगवा लिया है उन्होंने जेल में, एक्सरसाइज का सामान मंगा लिया है। वो चाहते हैं कि हम जेल में ही एडजस्ट हो गए हैं, यहीं गुजारा करते रहे। वैसे भी उनको बाहर का खाना ज़्यादा हजम होता है, घर का खाना हजम नहीं होता। और वो अब कोई वो तो रही नहीं है, क्या कहते थे, एटीएम। तो अब उन्होंने जेल को ही एटीएम बना लिया है, गवर्नमेंट को ही एटीएम बना लिया है कि वहाँ कभी किसी कैदी को आज तक 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले कैदी मोहतरम नवाज शरीफ साहब को और मोहतरम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को एक्सरसाइज के लिए ऐसे सामान नहीं मिला, ऐसी मुराद नहीं मिली जैसी मुराद इनको मिल रही है। फिर भी इनकी बाँ 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 नहीं ख़त्म होती, फिर भी ये बोलते रहते हैं ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। और कुछ ना हो तो कहते हैं खाने में जहर मिला दिया। अरे खाने में तुम्हें जहर मिलाने की क्या ज़रूरत है? डबल डोज तुम्हें दी जाए, सिंगल डोज तो तुम्हें जो दे रहा है वो तो पता ही है, वो तो जेल सुप्रीडेंट को भी पता है कौन दे रहा है और किसके हुक्म पे मिल रही है। तुम्हें 2-4 दफ़ा ज़्यादा डोज दे दी जाए, बस ठीक है, काम हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, आप सिंगल डोज से बचें और आराम से ज़िंदगी गुजारे जाए। अली ज़फ़र साहब ने कहा, आम इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ का अबूरी सेटअप आ रहा है, ये कोई -1 फार्मूला नहीं है। चीज़ें चेयरमैन पीटीआई के बगैर तहरीक इंसाफ का कोई तसव्वुर नहीं। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। कौन होंगे? बैरिस्टर मिस्टर गौहर भट्ट नहीं, गौहर भट्ट तो कभी भी न जाए, वो तो नहारी खा के वैसे ही 4 कहानियाँ सुनाए इनको। अच्छा खैर, मुझे नहीं पता क्या हो, गौहर भट्ट साहब जाने और ये जाने, मैं ऐसे ही बीच में आ रहा हूँ। तो अली ज़फ़र साहब ने कहा जो चेयरमैन पीटीआई का वो आर्जी तौर पर होगा, जो भी चेयरमैन होगा पीटीआई का वो आर्जी तौर पर होगा। दूसरी जानब बैरिस्टर गौहर ने कहा, मेरे पास चेयरमैन पीटीआई का शुक्रिया अदा करने के अल्फाज नहीं हैं। चेयरमैन पीटीआई ने ही पार्टी का अव्वल और आखिर नजरिया है। यानी गौहर साहब, जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, वो खुशामदीद कर रहे हैं और शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि सबको छोड़ के जिन्होंने लाठियाँ खाई हैं, जिन्होंने गालियाँ खाई हैं, जिन्होंने टीवी पे लड़ाई की है, उनको छोड़ के मुझे आपने चुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आपने एक ताकतवर आदमी को नहीं चुन लिया, आपने कहीं चुन लिया होता मखदूम साहब को
تو मुल्तान वाले मखदूम साहब को तो लग पता जाता आपको। पार्टी स्ट्रांग भी होती, पार्टी में जोश और जज्बा भी होता और पार्टी में सीटें भी ज़्यादा जीतते, लेकिन इमरान खान साहब उसमें माइनस होते। ये तो अपनी बहनों को आगे लाएंगे। कहते थे कि विरासत नहीं होगी, पार्टियों में विरासत नहीं होगी, ये अपनी बहनों को आगे लाएंगे, देख लेना। बीवी पे एतबार नहीं करेंगे, किसी पे एतबार नहीं करेंगे, ये आगे लाएंगे तो अपनी बहनों को लाएंगे। शौकत खानम अस्पताल, हजारों आदमी वहां जाकर मेंबर बन सकते हैं, नेक भी हैं, अच्छे भी हैं, काम भी कर सकते हैं, और डॉक्टर भी हैं कई। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बहनों को आगे लाया। डायरेक्टर जो हैं, जरा आप सर्च करके देखिए, जो डायरेक्टर हैं वो सारे के सारे उनके अपने रिश्तेदार हैं। कोई एक दो बाहर के इत्मीनान के आदमी होंगे, वरना सारे अपने के अपने हैं और लाखों में तनख्वाह लेते हैं। और ज़ाहिर है कि अपना ट्रस्ट है, लाखों में तनख्वाह क्यों ना ले, वो लाखों में तनख्वाह लेते हैं और बहनों के घर में जानी है। और गौहर अली भट्ट अपने तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर साहब ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी। तो फिर क्या लड़ेगी? इंट्रा पार्टी में भी अगर इमरान खान साहब नहीं होंगे तो फिर इमरान खान साहब ने आलू भेजने हैं, इमरान खान साहब ने गंडे भेजने हैं, इमरान खान साहब ने क्या बेचना है? वो नवाज शरीफ की तरह घर बैठेंगे। अब वो 10 साल घर बैठेंगे आराम से। जेल में बैठने का दिल करे तो जेल में बैठे, जेल में बैठने का दिल आ जाएगा तो उनको बाहर भेज दिया जाएगा। साजबाज हो रही होगी, कहीं ना कहीं हो रही होगी, और आखिर में बाहर भेज दिया जाएगा। लेकिन ये तो पक्की बात है कि अगर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रहे तो आम पार्टी इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। और अगर उन पे बैन हो गई आम पार्टी तो फिर बल्ले का निशान भी गया, फिर तहरीक इंसाफ भी गई। उनके हाथ के साइन से अगर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रहे तो उनके हाथ के साइन से कोई टिकट भी नहीं जारी होगा। जब कोई टिकट नहीं जारी होगा तो वो लाखों रुपए जो टिकटों से इन्होंने वसूल किए वो कहाँ गए? हिसाब तो साहब ने देना नहीं किसी को भी, लेकिन लोगों ने जिन्होंने दिए हैं उन्होंने कौन सा अपने पल्ले से दिए हैं? उन्होंने भी गवर्नमेंट के चोरी किए हुए थे, उन्होंने इनको ला के दे दिए, इन्होंने इकट्ठे करके बोरियों में भर के कहीं संभाल लिए। अब वो बाहर चले जाएंगे और सिलाई मशीनों में की आमदन से वो ज़ाहिर हो जाएंगे। ये कहते थे कि कोई ऐसी स्कीम नहीं लाएंगे जिससे राहत मिले किसी को, और सबसे पहले ये खुद लाए। मुझे अली वो रजी दादा साहब, रजी रिजवान साहब याद आ रहे हैं कि ये बैन वक्त में वही करते हैं जो ये दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। उनके अल्फाज में तो मैं नहीं कह सकता, वो तो बड़े अच्छे अच्छे अल्फाजों में उनके पास है ज़खीरा। वो तो और भी बहुत कुछ कहते होते हैं, यूट्यूब को भी बहुत कुछ कहते हैं, पता नहीं कौन से मजहूल और कौन से क्या क्या, लेकिन हकीकत यही है जो वो कहते हैं, ऐसा ही होता है। वकील अली जफर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हफ्ते को पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने जा रहे हैं। इस हफ्ते को यानी कि आज, कल, परसों, तरसों, 3-4 दिन के बाद इलेक्शन के मौका देना नहीं चाहते, इलेक्शन कमीशन को मौका देना नहीं चाहते कि वो बल्ले का निशान ना दे। यानी ये इलेक्शन वो सिर्फ बल्ले का निशान लेने के लिए कर रहे हैं। अरे बाबा बैठो, अब वो तस्वीर कहाँ गई? अब तो कभी तस्वीर हाथ में नजर नहीं आई। अब तो वो पिंकी रानी, जो पिंकी पीरनी, सॉरी भाई, वो पिंकी पीरनी नहीं रही। अब तो वो भी अपने असली रूप में आती जा रही है। अब तो खावर माने का भी अपने असली रूप में नजर आ रहे हैं। सभी असली रूप में नजर आएंगे, देखते जाएं।
اور پھر آپ کو سب پتہ چلتا جائے گا کہ یہ کیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میری طرف سے خدا حافظ، آپ خوش رہیں اور خوشیاں تقسیم کریں۔ مجھے اشفاق احمد صاحب یاد آ گئے، یہ میں داستان سرائے بھی انہی کے گھر کے نام سے رکھا تھا، اور انہی کا فکرہ آئندہ سے میں دہرایا کروں گا کہ خوشیاں تقسیم کریں اور خوش رہیں اور خوشیاں تقسیم کریں۔ کچھ جیسا بھی فکرہ ہوگا میں ایک دفعہ دیکھ کے آئندہ سے وہی بولا کروں گا آخر پہ انشاءاللہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔